ہاں جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ عبداللہ علی کدھر جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ دو بھائی اللہ پہ مسکے آئے مسکے آئے ہاں ٹھیک ہے اوکے ہاں اللہ چلو فاتو ٹھیک ہے چلو تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو کیا جملہ لکھا گیا ہے یہاں کہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کے کانوں کے برابر تک اٹھائے. اگر کانوں کی یہاں لو جو ہے اس کو لگا لے ہاتھ تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے کانوں کے برابر تک اٹھا لیے ہیں. اگر کسی نے نہیں لگایا تو اس کا کوئی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. کانوں کے برابر تک لے جانا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کندھے کے برابر عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کہاں تک؟ کانوں کے برابر. اور یہاں لگاتے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو یہ تسلی ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ میرے ہاتھ کانوں کے برابر تک چلے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ نیت کرتے ہوئے ساتھ تکبیر تحریمہ اس نے کہنا ہے. تکبیر تحریمہ اس نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لفظ جو ہے اس کو تکبیر تحریمہ بولا جاتا ہے، اور یہ نماز شروع کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یہ لفظ جو اللہ اکبر. اور ہر اس ذکر کے ساتھ نماز شروع کرنا صحیح ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. مثلا سبحان اللہ، یعنی کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا، سبحان اللہ کہہ کر بھی نماز شروع کر دی تو نماز ہو جائے گی اس میں. اگر عربی سے عاجز ہو، کوئی آدمی کسی کو عربی نہیں آ رہی ہے، نہیں آتی، تو اس نے فارسی میں بھی کہہ دیا، فارسی زبان میں، تو بھی جائز ہے. اگر عربی پر قادر ہو تو فارسی میں شروع کرنا صحیح نہیں ہے. یہاں دو زبانوں کا ذکر کیا گیا، فارسی اور عربی کا. اور میں کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو کس زبان میں اس نے کہہ دیا؟ فارسی کے اندر یہ کلمہ کہہ دیا اللہ اکبر، تو نماز وہ پڑھ سکتا ہے. عربی نہ آتی، اگر عربی کے اوپر قدرت رکھتا ہو، یہ اس کو عربی میں پڑھنا آتا ہو، تو پھر اس نے کس میں کہنا ہے؟ عربی کے اندر کہنا ہے. اور صحیح قول کے مطابق فارسی میں قرات کرنا بھی صحیح نہیں ہے. یہ جو آگے قرات کی جاتی ہے نا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، یہ صرف عربی زبان میں، تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے ہی ہاتھوں کو ہم کانوں کے قریب تک لے گئے، کانوں کے برابر اٹھایا، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا ہے. ناف کے نیچے، یہ جو ناف تو نہیں جس کو بول رہے ہیں اپنی زبان میں، ناف کے نیچے دائیں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر، یہ جو کلائی ہے پلسو، اس کے اوپر یہاں کلپ کرنا ہے، ایسے کر کے 3 انگلیاں ایسے رکھنی ہیں، ایسے کر کے ہاتھ جو ہے وہ باندھنے ہیں. ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد ثنا پڑھے، جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے، کیسے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تیرا نام برکت والا اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ولا الہ غیرک، اس کا مطلب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر نمازی ثنا پڑھے اور پھر قرات کے لیے. اب یہ اکیلے نماز پڑھ رہی ہے، وہ بتا رہا ہوں آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، جب امام کے پیچھے نہیں، جب اکیلے پڑھتے ہیں. تو اس میں آپ نے قرات کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. اور پھر یہ جب امام کے پیچھے ہوں تو نہیں پڑھنا، آپ نے اکیلے ہوں تو پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے. پھر آپ نے آگے قرات شروع کر دینی ہے سورہ فاتحہ جب اکیلے نماز پڑھ رہے. جب امام کے پیچھے ہوں تو صرف کہاں تک پڑھنا ہے؟ ولا الہ غیر تک آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے.
आस्ते आवाज़ में पढ़नी है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े और इमाम और मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहे। जब आमीन मुक्तदी कहता है ना, इमाम कहता है वलद्दालीन, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में और फजर की जो जहरी नमाज़ें ऊंची आवाज़ में क़राअत होती है, ज़ोर और असर में ऊंची आवाज़ में क़राअत नहीं होती। ये भी याद रखेंगे, ज़ोर और असर में भी इमाम के पीछे क़राअत नहीं करनी, खामोश खड़ा रहना है, सिर्फ सना पढ़नी है। फिर कोई सूरत या 3 आयात पढ़े। ये अकेले जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा के बाद आपने क्या पढ़ना है, कोई सूरत पढ़नी है, छोटी सूरत पढ़ लें, कुल अल्लाह पढ़ लें, या कोई 3 आयात पढ़ लें कुरान में से जो आपको याद हो, या एक बड़ी आयत पढ़ें जो 3 छोटी आयात के बराबर हो, जो 3 छोटी आयात के बराबर हो। और ये जब आपने सूरत पढ़ ली, कुल अल्लाह पढ़ ली, ये इन आतीना कल कोसर पढ़ ली, कोई 3 आयतें पढ़ ली छोटी, ये एक बड़ी आयत पढ़ ली, उसके बाद आपने क्या करना है, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है। रुकू में आपने जो है इत्मीनान से, आराम से रुकू करना है, यानी कि जल्दी से नहीं, आराम के साथ आपने रुकू करना है। रुकू में आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपका सर और जो आपका कमर है वो सीधी होनी चाहिए, उज़र ना हो, किसी को मसला ना हो, कमर का दर्द ना हो, कोई बीमारी ना हो, उसमें कैसे रखनी है, अपनी सर और कमर सीधा रखना है। और रुकू की हालत में आपने जो मर्द के लिए हुक्म है वो अपने बाजू बिल्कुल सीधे, ऐसे सीधे रखे, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बाजू सीधे होने चाहिए। और फिर जो हाथ की उंगलियां हैं ये नॉर्मल जैसे खुली होती हैं, ऐसे घुटनों को पकना है, उसमें घुटनों को पकना है, ये रुकू में। और घुटनों को हाथों से पकड़े, उंगलियों को कुशादा रखें, खुला करके घुटनों को पकना है। 3 बार, कम अज़ कम 3 बार तस्बीह के लिए, कम अज़ कम सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये कम अज़ कम, ये 3 बार जो है ये सुन्नत अदा है। ज़्यादा 5 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, ताकत में अगर कोई लंबा रुकू करना चाहता है। उसके बाद सर उठाना है ऊपर, 7 कलिमात कहने, क्या कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ताला ने उसकी बात सुनी जिसने उसकी तारीफ़ की। इसका तर्जुमा है समी अल्लाहु लिमन हमीदा के, अल्लाह ने उसकी बात सुनी जिसने अल्लाह की तारीफ़ की। रब्बना लकल हम्द, और साथ अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों आपने कहना है, रब्बना लकल हम्द भी साथ कहना है। लेकिन अगर इमाम के पीछे हैं तो आपने क्या करना है, इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आपने पीछे से उसके जवाब में क्या कहना है, रब्बना लकल हम्द। और इसका मतलब है हमारे रब तेरे ही लिए तारीफ़ है, रब्बना है हमारे रब, लकल हम्द तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है। ये कहे मुक्तदी सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहे। फिर ये याद रखें कि जब रुकू से खड़ा हुआ जाता है ना ऊपर, तो इत्मीनान से खड़ा रहना है, हल्का सा पौजा लेना है। ये नहीं है कि रुकू से थोड़ा सा सर ऊपर किया और वहाँ से ही नीचे सजदे में चले गए। ये जो है ना नमाज के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़रूरी लाजमी है कि आपने सुकून के साथ सीधा खड़ा होना है, फिर उसके बाद आपने सजदे की तरफ जाना है नीचे। फिर सजदे के लिए झुकते हुए साथ तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाते हुए क्या करें, अपने हाथ रखे, फिर दोनों हथेलियों के दरमियान सर को रखे और इत्मीनान से नाक और पेशानी के साथ जो है वो सजदा करें। जब ज़मीन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पहले घुटने लगेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ हाथ रखे, फिर दोनों हथेलियों के दरमियान जो है वो ये सर और जो नाक है ये दोनों इनके दरमियान थोड़ा सा दूर होने चाहिए। मर्द के लिए हुक्म है कि आपके ये जो बाजू हैं ये कालीन से, ज़मीन से क्या होने चाहिए, ऊपर उठे होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। जमात में हूँ, ज़्यादा आपस में खड़े हूँ तो ज़्यादा इस तरह खोलने नहीं है, इस तरह नहीं खोलने लगा। अकेले नमाज़ पढ़ रहे हूँ तो थोड़ा इनको खोल लेना है ऐसे, तो जमात में थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लें, दूसरे बंदे को तकलीफ़ ना हो, उसको ना लगे, लेकिन उठाना ही लाजमी है, ज़मीन से ऊपर आपने उठाना है। सजदे में फिर आपने क्या करना है, और ये याद रखेंगे पेशानी सही करके लगी होनी चाहिए, और ये नाक की जो हड्डी है ये कालीन के ऊपर जहाँ मसल्ले के ऊपर आपने रखा है वो वहाँ सही लगी होनी चाहिए, थोड़ी सी दबा कर लगानी है। 3 बार कम अज़ कम यहाँ भी आपने क्या कहना है, सुबहाना रब्बियल आला। जहाँ इन्होंने आगे मैंने जो पहले वज़ाहत कर दी, आगे मैंने लिखा हुआ है कि भीड़ ना हो, यानी हजूम ना हो, तो पेट को रानों से और बाजू को बगलू से दूर रखे, यानी जो मैंने पहले ऐसे बताया कि जहाँ रश न हो।
हाथों और पाँव की उंगलियों को किबला रुख करें। ये भी याद रखें, जब सजदे में गए हैं तो जो पाँव की उंगलियां हैं उनका जो किधर होना चाहिए, आगे मक्का की तरफ रुख होना चाहिए, और दोनों हाथों की उंगलियों का भी रुख किधर होना चाहिए, सीधा आगे मक्का की तरफ उसका रुख होना चाहिए, किबला रुख होना चाहिए। यहाँ औरत के लिए हुक्म है कि औरत यहाँ जो सजदे में जाए जब, तो वो झुक जाए और अपने पेट को रानू से मिला दे, ठीक है। उसने दोनों अपने पाँव बाहर निकालने हैं, राइट साइड जो दाएं साइड होती है, दोनों पाँव निकाल कर फिर उसने सजदा करना होता है। औरत के लिए हुक्म है कि उसके ये दोनों बाजू किसके ऊपर, मसल्ले के ऊपर लगे होने चाहिए, कलीन के ऊपर लगे होने चाहिए। जब वो सजदा करे उसके बाजू उठे हुए नहीं होने चाहिए। रुकू में भी औरत का जो बाजू है वो टाइट नहीं होनी चाहिए। जब मर्दों के लिए जिस तरह हुक्म है कि आपने बाजू सीधा रखना है, औरत जो है वो नॉर्मल रुकू करे, वो अपने बाजू को बिल्कुल जो है सीधा रखना चाहिए। फिर दोनों सजदों के दरमियान एक सजदा आपने किया, तस्बीह पढ़ी, और फिर दोनों सजदों के दरमियान हाथों को रानों पर रखते हुए मुतमिन होकर बैठे, और फिर तकबीर। यहाँ जब बैठे जाते हैं इसको बोलते हैं जलसा करना, बैठना करना, उसको बोलते हैं बैठना। तो ये सही करके बैठना है, जैसे बैठा जाता है, बैठ कर फिर दूसरे सजदे के लिए जाना है। बात देखा जाता है अमूमन कई दफ़ा लोग जल्दी है सजदे से पूरा सीधा के बैठते नहीं, तो जल्दी में वहाँ से जो है ना दूसरे सजदे के लिए चल जाते। तो हुक्म क्या है, आपने इत्मीनान से आराम से एक सजदा करने के बाद आराम से ऐसे बैठ कर फिर दूसरे सजदे की तरफ जो है वो फिर जाना है, फिर दूसरा सजदा करना है, और दूसरा सजदा करने के बाद फिर तकबीर करते हुए आपने हाथों के साथ ज़मीन पर सहारा ना ले और ना ही बैठे। यानी ये कोशिश करनी है कि तंदुरुस्त मुँह का आप ज़मीन का सहारा लेते हुए ना खड़े हो, ज़मीन के ऊपर हाथ को टेकते हुए वापस खड़ा नहीं होना है। बात घुटने के ऊपर हाथ रखकर आप जो है वापस जो पोजीशन है आपकी दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो रहे हैं और अपनी सीधा खड़ा हो जाना है। तो ये पहली रकत आपने मुकम्मल कर दी। पहली रकत मुकम्मल हो गई, जिसमें आपने पहले क़याम किया, खड़े हुए, क़िरात की, फिर रुकू किया, रुकू से खड़े हुए, और फिर सजदे में गए, एक सजदा किया, फिर बैठे आराम से, फिर दूसरा सजदा किया, दूसरा सजदा करने के बाद दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो गए। दूसरी रकत में आपने क्या करना है, यहाँ सना भी नहीं पढ़नी है और औज़ बिल्लाह भी नहीं पढ़नी है। अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरह फातिहा आपने पढ़नी है।